आज का लेक्चर हमारा होगा RH ब्लड टाइप के ऊपर। ठीक है, हमने पढ़ा पहले कि क्लिनिकली जब हम ब्लड ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस देखते हैं तो हमारे पास दो ब्लड टाइप्स आती हैं, ब्लड ग्रुप टाइप्स आती हैं। एक तो RH सिस्टम और दूसरा ABO सिस्टम। ABO सिस्टम हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। टुडे वी विल फोकस ऑन RH ब्लड टाइप्स। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Along with the OAB blood type system, the RH blood type system is also important when transfusing blood. In 1940, Landsteiner, हमने कल पढ़ा ABO blood group 1900 और 1901 में डिस्कवर हुआ। उसके बाद in 1940, the same person, Landsteiner, and his co-workers discovered a new factor in the human RBCs, which they called rhesus or RH factor. The major difference in the OAB system, the plasma agglutinins responsible for causing transfusion reaction develop spontaneously, whereas in the RH system, spontaneous agglutinins almost never occur. Instead, the person must first be massively exposed to an RH antigen, such as by transfusion of blood containing the RH antigen, before enough agglutinins develop and to cause a significant transfusion reaction. अब ये देखें OAB सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा कि ये OAB एंटीजेंस होते हैं जिसकी वजह से इसकी एंटीबॉडीज भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डेवलप हो जाती हैं। लेकिन ये कहते हैं कि RH सिस्टम जो है उसकी एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं होती। तब तक डेवलप नहीं होती जब तक वी आर नॉट एक्सपोज्ड टू द RH फैक्टर इन सिग्निफिकेंट अमाउंट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे हम देखेंगे ये फूड और बैक्टीरियाज वगैरह के अंदर प्रेजेंट इसके नहीं होते, जैसे कि हमने पढ़ा था OAB सिस्टम के एंटीजेंस उसमें प्रेजेंट होते हैं, दैट इज व्हाई। ठीक है, RH antigen, RH positive and RH negative people. There are 6 common types of RH antigens, each of which is called an RH factor. These types are designated CDE capital and CDE small respectively. A person who has C antigen does not have small c antigen, but the person missing the C antigen always has the C antigen. The same is true for D and E. Because of this manner of inheritance of these factors, each person has one of each of 3 pairs of the antigens. तो इसमें हमने देखा हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एंटीजेंस आ रहे हैं, कैपिटल C, D, E एंड स्मॉल c, D, E। ठीक है, इनकी फर्दर आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे होती है। अगर एक पर्सन के पास कैपिटल C या कैपिटल लेटर्स में से कोई एंटीजन है तो स्मॉल लेटर वाला एंटीजन उसके पास प्रेजेंट नहीं होगा। सेम इज ट्रू अदरवाइज। जिनकी आवाज आ रही है प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें, डिस्टर्बेंस नहीं करें। अच्छा prevalence. The type D antigen is widely prevalent in the population and considerably more antigenic than the other RH antigens. Anyone who has this type of antigen is said to be RH positive. अब सबसे ज्यादा प्रेवलेंट इस सिस्टम के अंदर एंटीजन डी है जो कि प्रेवलेंट है पॉपुलेशन के अंदर और सबसे ज्यादा एंटीजेनिक है देन अदर RH एंटीजेंस। दैट इज व्हाई जब डी अवेलेबल है तो हम कहते हैं कि ये बंदा जो है ये RH पॉजिटिव है। एवरी फैक्टर जो है उसकी एक एंटीजेनिसिटी होती है व्हिच इज एबल टू बेसिकली प्रोड्यूस एन इम्यून रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो अगर हम बात करें RH सिस्टम की, इसमें सबसे ज्यादा एंटीजेनिसिटी रखता है डी। दैट इज व्हाई हम डी को करते हैं कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। ठीक है,
जिसके अंदर डी प्रेजेंट है, टाइप डी एंटीजन प्रेजेंट है, वी से दिस पर्सन इज RH और रेसिस पॉजिटिव. जिसके अंदर ये नहीं है, वी से the person is said to be RH negative. About 85% of all white people are RH positive, 15% are RH negative. In American blacks, the percentage of RH positives is about 95%, whereas African blacks is virtually 100%. That means के mostly population of the world जो है वो RH positive है. In Orients it is more than 85%. RH antibodies. These antibodies differ from the ABO system. Anti-RH antibodies do not occur naturally, but are synthesized by an RH negative person in response to RH positive RBCs. This is due to the fact that unlike the ABO system, whose antigenic substances A and B are found in the food and bacteria, the antigens of RH system only occur in the RH positive RBCs. Thus, RH antibodies are not produced naturally, but are only produced when RH negative person receives blood that contains RH positive RBCs. जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर A एंड B एंटीजेंस प्रेजेंट हैं, जो कि बॉडी के अंदर नेचुरली या फिर फूड और बैक्टीरिया के थ्रू एंटर होके हमारी बॉडी में उसकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा देते हैं. लेकिन अनलाइक दैट RH सिस्टम के अंदर RH एंटीबॉडीज तब तक डेवलप नहीं होती जब तक एक RH नेगेटिव पर्सन is not exposed to RH positive blood type. Once the RH negative person is exposed to RH positive blood type, तो उसके बाद उसके अंदर RH की एंटीबॉडीज डेवलप होंगी. Anti-RH antibodies are predominantly IgG antibodies, but ABO antibodies are predominantly IgM type. ये हमने कल पढ़ लिया था. ABO antibodies are complete antibodies and can cause agglutination if corresponding RBCs are suspended in 0.9% normal saline solution या NaCl solution. Anti-RH antibodies are of two types, complete or incomplete. These can agglutinate RH positive RBCs suspended in isotonic saline, i.e. 0.9% normal saline या फिर NaCl solution. Incomplete, these are not active in isotonic saline but need the presence of colloidal particle, albumin, polyvinyl, pyrrolidine, etc. in the medium. तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं ABO सिस्टम की, वो कंप्लीट एंटीबॉडीज होती है दैट कैन कॉज एग्लूटिनेशन. लेकिन RH पॉजिटिव के अंदर या RH टाइप के अंदर हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट. जो कंप्लीट है वो क्लियरली नाम से जाहिर है वो एग्लूटिनेशन कॉज कर सकते हैं RBCs की, लेकिन जो इनकम्प्लीट हैं दे कैन नॉट कॉज एग्लूटिनेशन देमसेल्व्स, बट उनको किसी के सहारे की या किसी और की प्रेजेंस की जरूरत होती है, जो कि कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, एल्ब्यूमिन, पॉलीविनाइल, पायरोलिडीन एक्सेट्रा, इस तरह के. ठीक है. अब इनहेरिटेंस की बात करते हैं हम ब्लड टाइप्स की, कि इसकी इनहेरिटेंस कैसे होती है. जैसे हमने पढ़ा था ABO के अंदर भी एक जीनोटाइप्स होती हैं, फिर फिनोटाइप्स होती हैं. तो इस तरह इनहेरिटेंस ऑफ RH ब्लड टाइप्स. The RH blood type D is due to the presence of the gene which is dominant over its allelomorphic gene D, which is recessive. That means कि अगर type D कैपिटल आ रहा है और उसके साथ स्मॉल है, तो that means that capital D is dominant over its allelomorphic. Allelomorphic means जो same क्रोमोसोम ऑन द ऑपोजिट जीन प्रेजेंट होता है उसको एलिलोमॉर्फिक बोलेंगे. जो बेसिकली जब हमने ABO सिस्टम की बात की तो हमने कहा क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर एक जीन के दो स्ट्रैंड्स होते हैं DNA के, उस दो स्ट्रैंड्स के ऊपर दोनों के ऊपर क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर जो एलील्स या जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो एलिलोमॉर्फिक होंगे. RH ब्लड टाइप के अंदर वो D है. अगर कैपिटल D है और स्मॉल d है तो कैपिटल D इसमें डोमिनेंट है और वो शो करेगा अपने आप को. The D antigen is inherited as one gene on the short arm on the first chromosome
with various alleles। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के बारे में थोड़े से। ये ही RH पॉजिटिव की वजह से एक बहुत कॉमन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या कह लें एक रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा RH टाइप्स का। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस is a disease of the fetus and newborn child characterized by agglutination and phagocytosis of the fetus's RBCs. In most instances of erythroblastosis fetalis, the mother is Rh negative and the father is Rh positive. The baby has inherited the Rh positive antigen from the father and mother develops anti-Rh agglutinins from exposure to the fetus's Rh antigen. अब हमने पहले पढ़ा कि जब तक एक्सपोजर नहीं होगा RH नेगेटिव पर्सन को RH पॉजिटिव ब्लड का, तब तक उसकी एंटीबॉडीज उसके अंदर डेवलप नहीं होंगी। ठीक है। अब इसी तरह ये क्या कह रहे हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कैसे हो रहा है? द मदर इज RH नेगेटिव व्हाइल द फादर इज RH पॉजिटिव। उसकी वजह से क्या हुआ? द बेबी था दैट इज RH पॉजिटिव, उसकी वजह से जब मदर और बेबी के ब्लड की मिक्सिंग हुई तो मदर के ब्लड ने RH एंटीजेंस की रिस्पॉन्स में उसकी एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर दी। इन टर्न हो क्या रहा है फिर जब वो एंटीबॉडीज बन गई? इन टर्न द मदर्स ब्लड एग्लूटिनेंस या एंटीबॉडीज डिफ्यूज थ्रू द प्लेसेंटा इनटू द फीटस एंड कॉज RBC एग्लूटिनेशन एंड हीमोलिसिस प्रोड्यूसिंग एनीमिया। वही एंटीबॉडीज थ्रू द मदर एंटर कर जाती हैं चाइल्ड में और वो कॉज करेंगी एग्लूटिनेशन ऑफ द RBCs एंड hemolysis, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या? एनीमिया एंड जॉन्डिस की पिक्चर डेवलप हो जाएगी। अनदर डेफिनेशन इसकी देखते हैं अदर अल्फाज में, ये थोड़ी क्लिनिकल इसकी डेफिनेशन या पिक्चर क्या होगी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की। hemolytic anemia in the fetus or neonate as erythroblastosis neonatorum caused by transplacental transmission through the placenta, जो ट्रांसमिशन हो रही है of maternal antibodies or to fetal RBCs, maternal antibodies fetal RBCs को जा रही हैं और वो उसे destroy कर रही हैं। The disorder usually results from incompatibility between mother and fetal blood because mother is Rh negative and the fetus is Rh positive, often Rhd antigens। ठीक है। The commonly used term is RH. RH derives from rhesus and the term rhesus blood group system, rhesus factor, rhesus positive and rhesus negative. RH positive and RH negative refers to the D antigen only. अब जब हमने बात की कि rhesus blood system की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा prevalent और सबसे ज्यादा एंटीजेनिसिटी रखने वाला, एंटीजेनिसिटी से मुराद एक रिएक्शन कॉज करा देने वाला जो फैक्टर हमारे पास इस सिस्टम के अंदर है, दैट इज डी। दैट इज व्हाई जब हम रेसिस फैक्टर की या रेसिस पॉजिटिव की या रेसिस ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो वी आर रेफरिंग टू दिस डी एंटीजन बिकॉज इट इज द ओनली एंटीजन व्हिच कॉजेस एक रिएक्शन or which has most antigenicity and is most prevalence worldwide. अब excessive hemolysis of RBCs leads to greater production of bilirubin, जो erythroblastosis fetalis के अंदर RBCs की destruction हो रही है, जो hemolysis हो रहा है। Now what is happening in the fetus? The hemolysis of RBCs is causing a production and increased production of bilirubin, which produces jaundice. Jaundice may be seen at time of birth or within 24 hours of the birth. As the blood-brain barrier is deficient in the newborn, therefore lipid-soluble indirect bilirubin is deposited in lipid-rich brain nuclei, producing bilirubin encephalopathy or kernicterus, which is potentially fatal. In addition, the fetal blood shows presence of immature nucleated RBCs, which are insufficient carriers of oxygen. This is termed as erythroblastosis. ठीक है, फिर अब यहाँ से हम शुरू स्टार्ट करते हैं दोबारा। एक्सेसिव हीमोलिसिस जो हमने पढ़ा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के अंदर हो रहा है हमारे पास बिकॉज ऑफ द एंटीबॉडीज डेवलप्ड बाय द मदर्स ब्लड सिस्टम व्हिच एंटर थ्रू प्लेसेंटल बैरियर टू द फीटस and causes hemolysis of RBCs.
अब वो क्या कर रही है, दैट इज प्रोड्यूसिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बिलिरुबिन which is producing jaundice. Now this jaundice can be seen at the time of birth or within 24 hours of the birth. Now in the children or neonates, the blood brain barrier is deficient in the newborn, yeah, it is not very developed. तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो लिपिड सॉल्युबल इनडायरेक्ट बिलिरुबिन थी हमारे अंदर, जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज की वजह से प्रोड्यूस हुई, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके लिपिड रिच ब्रेन न्यूक्लियाई के अंदर जाके डिपॉजिट होती है, और वहां पे क्या हो रहा है, फिर बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी डेवलप होना शुरू होती है जाके, जिसको हम कर्निकटेरिस बोलते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियली एक फेटल डिजीज होती है। इन एडिशन द फीटल ब्लड आल्सो शोज इमेच्योर न्यूक्लिएटेड आरबीसीज। जब डिस्ट्रक्शन होगी रैपिडली, फिर जब रिप्रोड्यूस होंगे आरबीसीज, तो वो इमेच्योर न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं, जो कि ऑब्वियसली ऑक्सीजन अपनी कैरी करने में प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, जिसको हम बेसिकली टर्म करते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। सोयर केसेस के अंदर वही सारा ये जो प्रोसेस चल रहा है कि जॉन्डिस भी है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी है, लैक ऑफ आरबीसीज भी है, ठीक है, बिलिरुबिन भी ज्यादा है, एन्सेफेलोपैथी भी डेवलप हो गई है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोफेटालिस हो जाता है, या फीटस इज ग्रॉसली एडिमेटस, ठीक है, वो सोलन से हो जाते हैं बेबीज, उसकी वजह से वो काफी फेटल कंडीशन है और वो डाई आउट कर जाते हैं। ठीक है, ये अब आप पिक्चर देख सकते हैं, इसके अंदर दिखाया जा सकता है। ठीक है, ये जो प्लेसेंटा अटैच्ड है, थ्रू दिस आपके जो आरबीसीज के एंटीजन है वो एंटर हो जाते हैं, और ये हाइड्रोफेटालिस की आप पिक्चर देख सकते हैं, बेबी सोलन है ग्रॉसली। अब यहाँ पे आप देखें कि मदर फीटस आरएच रिस्पॉन्स कैसे डेवलप हो रहा है। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर मदर इज आरएच नेगेटिव, बट द बेबी इज आरएच पॉजिटिव बिकॉज द फादर इज आरएच पॉजिटिव। अब हुआ क्या, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो मदर है दैट इज एक्सपोज्ड टू आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस, और उसकी रिस्पॉन्स में मदर के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। तो बेसिकली ये जो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव इनकम्पैटिबिलिटी है, इट इज नॉट हैपनिंग द फर्स्ट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी। ठीक है, ये सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज के अंदर, यानी कि पहली प्रेगनेंसी के बाद जो भी प्रेगनेंसी है, वो एवरी प्रेगनेंसी इज हैविंग एन इंक्रीज रिस्पॉन्स टू दिस पॉजिटिव RH ब्लड टाइप। यानी कि पहला बेबी RH पॉजिटिव था, मदर ने कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया, एट द टाइम ऑफ बर्थ RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज डेवलप कर ली। फिर जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो उसमें देयर इज अ स्लाइट चांस अबाउट 10% के वो शो कर सकता है रिस्पॉन्स, आई थिंक अबाउट 3% मे बी, लेकिन विद एवरी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी ये चांस इंक्रीज होता रहेगा रिस्पॉन्स का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सेम वही दोबारा से पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है कि ये क्या हो रहा है, RH नेगेटिव मदर है, RH पॉजिटिव है, लेकिन ये सेकंड प्रेगनेंसी की बात हो रही है जब ब्लड एक्सपोज हो गया फीटस का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। फिर क्या हो गया, एंटीबॉडीज डेवलप हो गए। अब नेक्स्ट जब प्रेगनेंसी हुई तो मदर इज RH नेगेटिव बट ऑल्सो शोइंग येलो कलर्ड एंटीबॉडीज इन द सिस्टम। लेकिन अब जब फीटस RH पॉजिटिव आएगा तो दीज येलो antibodies would enter the fetus through placental barrier and will cause the problem we are discussing, erythroblastosis fetalis. Again this same pictorial representation के first pregnancy में कोई मसला नहीं है, the mother is normal, the child is normal, लेकिन during delivery develop हो गई antibodies। ठीक है, फिर उसके बाद अब antibodies remain in the system while when the next pregnancy happens वो antibodies enter करके सारा प्रॉब्लम करी इन द सेकंड प्रेगनेंसी। ठीक है, अगेन यू कैन सी द सेम पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव ब्लड टाइप जो कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कॉज कर रहा है। अगेन एंड अगेन वही बात आपको दिखाई जा रही है कि पॉजिटिव फादर नेगेटिव मदर, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई इश्यू नहीं हो रहा, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पॉजिटिव तो एक्सपोजर हो रहा है मदर का, तो उसकी वजह से एंटीबॉडीज डेवलप हो गई मदर के अंदर। नाउ द एंटीबॉडीज आर गोइंग टू स्टे देयर। अब उसके बाद जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर होगी तो वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी से वो एंटीबॉडीज थ्रू प्लेसेंटल बैरियर एंटर करेंगी फीटस में और उसके आरबीसीज को अटैक कर देंगी। ठीक है,
अब ये देखें, effect of the mother's antibodies on the fetus. After anti-Rh antibodies have formed in the mother, they diffuse slowly through the placental membrane into the fetus's blood. There they cause agglutination of the fetus blood. The agglutinated RBCs subsequently hemolyze, releasing hemoglobin into the blood. The fetus's macrophages then convert the hemoglobin into bilirubin, which causes the baby's skin to become yellow, jaundiced. वही चीज जो हमने पहले पढ़ ली थी कि हीमोलिसिस हो रही है, हीमोलिसिस की थोड़ी डिटेल में चले गए कि वो हीमोलिसिस की वजह से हीमोग्लोबिन रिलीज हो रहा है ब्लड के अंदर, वो हीमोग्लोबिन फिर मैक्रोफेजेस के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है बिलिरुबिन के अंदर, विच इज कॉजिंग जॉन्डिस. अब इंसिडेंस ऑफ दिस डिजीज क्या है, वही चीज आप लोग ये देखें, ये जो मैं आपको बता रहा था, सॉरी 3% है. An Rh negative mother having her first Rh positive child usually does not develop sufficient anti-Rh agglutinins to cause any harm. Lekin, however, about 3% of the second Rh positive babies exhibited some signs of erythroblastosis fetalis. क्यों? क्योंकि एक्सपोजर थोड़ा था फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो इस वजह से थोड़ी एंटीबॉडीज डेवलप हुई, इसलिए अबाउट 3% चांस है सेकेंड प्रेगनेंसी के अंदर शो करने का. लेकिन अब उससे आगे देखिए, जब जा रहा है कि अबाउट 10% हो रहा है थर्ड बेबीज एग्जिबिट द डिजीज. ठीक है, अब ये हर प्रेगनेंसी के साथ जो रिस्क है इस चीज का वो इंक्रीज होता रहेगा. ठीक है, अब क्लिनिकल पिक्चर ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस वो हमने पहले भी देख ली, लेकिन फिर यहीं पे वही बता रहे हैं कि द जॉन्डिस्ड एरिथ्रोब्लास्टोटिक न्यूबॉर्न बेबी इज एनीमिक एट बर्थ and the anti-Rh agglutinins from the mother's blood usually circulate in infant's blood for another about 1 to 2 months after birth, destroying more and more RBCs. The hematopoietic tissues of the infant attempt to replace this hemolyzed RBCs. The liver and the spleen becomes greatly enlarged and produce RBCs. Because of this rapid production of RBCs, many nucleated blastic forms are passed from baby's bone marrow into the circulatory system, and it is because of the presence of these nucleated blastic RBCs the disease is called erythroblastosis fetalis. ठीक है, अब वही बात है कि जो बेबी का हिमोलिसिस हो रहा है एंटीबॉडीज की वजह से, ठीक है, वो एरिथ्रोब्लास्टोटिक हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो सारी डिस्ट्रक्शन हो रही है, अब ऑब्वियसली उसकी प्रोसेसिंग भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, लिवर और स्प्लीन जो है वो प्रोडक्शन में हेल्प आउट करके, सारे प्रोसेस में हेल्प आउट करके एनलार्ज्ड हो जाते हैं, बेबी जॉन्डिस्ड होता है. ठीक है, अब वही चीज जो पहले पढ़ी थी हमने कि न्यूक्लिएटेड सेल्स जो हैं वो रैपिडली, जो कि इमेच्योर हैं, जो कि सेल ऑक्सीजन भी प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं कर पाते, लेकिन डेफिनेटली बॉडी ने एक रिस्पॉन्स को अपना रिस्पॉन्स शो करना है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लिएटेड प्लास्टिक फॉर्म्स जो हैं वो रैपिडली पास होते रहते हैं ब्लड फॉर्म के अंदर, हेंस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. अब कर्निक-टेरिस की बात की जाए तो वही बात है, although the Swyer anemia of erythroblastosis fetalis is usually the cause of death, many children who barely survive the anemia exhibit permanent mental impairment or damage to motor areas of the brain because of precipitation of bilirubin in the neuronal cells causing destruction of many, a condition called कर्निक-टेरिस. अब वही चीज जो पहले हमने डिस्कस कर ली कि बिलिरुबिन जो प्रेजेंट हो रहा था हीमोलिसिस की वजह से, ब्लड ब्रेन बैरियर के डेवलप ना होने की वजह से वो ब्रेन में एंटर हो जाता है, लिपिड सॉल्युबल ब्रेन सेल्स के अंदर जाके वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. नाउ दिस एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ बिलिरुबिन इनटू द ब्रेन is called कर्निक-टेरिस and it causes a permanent mental impairment. ये permanent mental impairment cause कर सकता है. It is also a fatal cause. कर्निक-टेरिस is a bilirubin induced brain dysfunction. Bilirubin is a highly neurotoxic substance that may become elevated in the serum, a condition known as hyperbilirubinemia. Hyperbilirubinemia may cause bilirubin to accumulate into the gray matter of the central nervous system, causing irreversible neurological damage. Simple. अब हमने पढ़ लिया कि इतना मसला हो रहा है तो डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी देख लेना चाहिए. तो ट्रीटमेंट ऑफ neonates with erythroblastosis fetalis exchange transfusion. One treatment for erythroblastosis fetalis is to replace the neonate's blood with Rh negative blood. About 400 milliliters of Rh negative blood are infused over a period of 1.5 or more hours, while the neonate's own Rh positive blood is being removed.
This procedure may be repeated several times during the first few weeks of the life, mainly to keep the bilirubin level low and thereby preventing kernicterus. By the time these transfused Rh negative cells are replaced with the infant's own Rh positive cells, a process that requires 6 or more weeks, the anti-Rh agglutinins that had come from the mother will have been destroyed. अब होगा क्या कि ये जो कॉन्टिन्यूस हम ट्रांसफ्यूजन करेंगे, एक कह रहे हैं कि ट्रांसफ्यूजन हो सकती है, कितनी ट्रांसफ्यूजन करेंगे, 400 मिलीलीटर्स की करेंगे अबाउट 1.5 आवर्स और मोर के अंदर. एक तरफ से हम उसको ब्लड इन्फ्यूज करेंगे इन्फेंट को, लेकिन दूसरी तरफ से उसका जो ओन ब्लड था उसको ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमने क्वांटिटी भी तो ब्लड की देखनी है ना, उसको बैलेंस में भी तो रखना है. तो इस वजह से एक तरफ से ड्रॉ करेंगे, एक तरफ से इन्फ्यूज करेंगे. ये रिपीटेड प्रोसेस करते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस एंटी आरएचडी जो है वो हम नेगेटिव उसके अंदर ज्यादा ट्रांसफ्यूज करते हैं. उसकी वजह से क्या होगा, वो जो पॉजिटिव एंटीबॉडीज जो आई थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी एंड देन द सिचुएशन बिकम्स नॉर्मल. Other measures that can be used to decrease the plasma bilirubin level includes phototherapy that converts bilirubin into water-soluble derivatives that can be easily excreted into the bile and urine. अब जो बिलुरुबिन कॉज हो रहा है इसकी वजह से उसकी आसान तरीन थेरेपी इन द न्यूनेट्स इज फोटोथेरेपी. ठीक है, अब फोटोथेरेपी की वजह से होता क्या है कि दैट ब्लड द बिलुरुबिन इन द ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉल्युबल. अब उस वाटर सॉल्युबल होने की वजह से क्या होता है, दैट इज इजीली एक्सक्रीटेड इन बाइल एंड यूरिन. सम ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड which activate hepatic enzymes UDP glucuronil transferase catalyzing the conversion of bilirubin into water soluble bilirubin glucuronides through bile and यूरिन. वही उसकी फिर एक्सक्रीशन हो जाएगी. कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि हमारी यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज वगैरह को हेपेटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करें, वो ड्रग्स भी हम यूज कर सकते हैं इस कंडीशन के अंदर, लेकिन दे वुड डेफिनेटली हेल्प अस विद द जॉन्डिस, नॉट विद द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस. अब प्रिवेंशन क्या है जी, इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है. अब हमें पता है कि एक मदर हैज बीन exposed to RH positive at her first pregnancy. अब second pregnancy के अंदर हम definitely कोई precaution ले सकते हैं for the prevention, ताकि ना mother को कोई loss हो ना fetus को. Now prevention कैसे है, the D antigen of blood group system is primary culprit in causing immunization of RH negative mother to RH positive fetus. In the 1970s, a dramatic reduction in the incidence of erythroblastosis fetalis was achieved with the development of RH immunoglobulin globin, an anti-D antibody injection that is administered to the expectant mother starting to 28 to 30 weeks of gestation. The anti-D antibody is administered to Rh negative women who deliver Rh positive babies within 72 hours to prevent sensitization of the mothers to anti-D antigen, greatly reduces the risk of developing large amount of D antibodies during the second pregnancy. अब basically उसका आसान तरीन हल हमारे पास आ गया 1970s के अंदर. वो बता रहे हैं कि ड्रामेटिक रिडक्शन आ गई. वो कैसे आ गई, एक चीज हमने डेवलप कर ली, दैट इज RH इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लोबिन. आसान अल्फाज में एंटी D antibody injections. Now what is meant by anti D antibodies injection? This means कि ये जो D antigen है उसकी एंटीबॉडीज और उसके खिलाफ हमारे पास एक एंटीबॉडी डेवलप हो गई है. नाउ व्हाट विल हैपन, जब हम ये मदर को इंजेक्ट कर देंगे, नाउ व्हेन द मदर इज एक्सपोज्ड टू दिस डी एंटीजन, ऑलरेडी मदर के ब्लड के अंदर सर्कुलेटिंग ये एंटी डी एंटीबॉडी इंजेक्शन होगा. वो क्या करेगा, वो एंटी डी जो डी एंटीबॉडीज हैं उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा, और जो वो डी पॉजिटिव आ रहा है एंटीजन डी जो आ रहा है वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा. सब्सिक्वेंटली क्या होगा कि वो जब डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो मदर के ब्लड में ज्यादा एक्सपोजर नहीं होगा और मदर जो है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस नहीं करेगी. ठीक है. Now effect of anti-D antibodies is to inhibit antigen-induced B lymphocyte antibody production in the expectant mother. वही बात है कि वो जो एंटीजन आ रहा है, डी एंटीजन आ रहा है, जो कि मदर के ब्लड में एक्सपोज होके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करा रहा है थ्रू द बी लिम्फोसाइट, अब वो नहीं होगा. क्यों, क्योंकि ये एंटी डी एंटीबॉडी है, ये उसको ब्लॉक कर देगी पहले. The administered anti-D antibody also attaches to D antigen sites on Rh positive fetal RBCs that may cross the placenta
and enter the circulation of the expectant mother, thereby interfering with the immune response to डी एंटीजन। वही बात रिपीट कि ये क्या करेगा, ये सारा उसको करके ब्लॉक कर देगा, उसकी वजह से हमारी मदर के अंदर प्रोडक्शन नहीं होगी एंटीबॉडीज की, दैट इज वाई। फिर एक्सट्रीम प्रोसेस के अंदर या फिर उसके बाद दूसरा हल हमारे पास प्लाज्माफेरेसिस आ जाता है। नाउ व्हाट इज दिस प्लाज्माफेरेसिस ऑफ मदर? बाय दिस टेक्निक द आरएच एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन मैटरनल ब्लड आर रिमूव्ड। ठीक है, ये बेसिकली देखें कि ये एक इम्यून सिस्टम की ही एक किस्म की डिजीज बनती है कि एक इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो रही है। ठीक है, वो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, उसके खिलाफ बेसिकली वो एंटीजन आ रहा है जिसकी वजह से एंटीबॉडीज के रिस्पॉन्स बन रहा है मदर के ब्लड के अंदर। ठीक है, अब ये प्लाज्माफेरेसिस आप मोस्टली आगे पढ़ेंगे ये जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं उसके अंदर, जब ऐसी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती हैं जिनकी हमें कुछ खास जरूरत नहीं है या फायदे से ज्यादा नुकसान होगा, तो दिस प्रोसेस प्लाज्माफेरेसिस इज ऑलवेज यूजफुल इन सच पेशेंट्स। तो इसी तरह जब हमारे पास ये डी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही हैं, नाउ इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज दे कैन कॉज डेफिनेटली हार्म। ठीक है, तो इस वजह से थ्रू प्लाज्माफेरेसिस वी कैन डिस्ट्रॉय देम और रिमूव देम। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं। दोनों ब्लड टाइप्स हमने देख लिए, RH ब्लड टाइप एंड ABO ब्लड टाइप। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर हमारे क्या पॉइंट्स हैं? This therapeutic process is one of the most important life-saving techniques. Its indication is primarily to replace the blood lost due to injury, burn, surgical operation, etc. Blood transfusion is also indicated in certain anemias, for example, aplastic anemia, thalassemia major, etc. ठीक है, ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है और डेफिनेटली इसकी जरूरत बार बार हमें मेडिसिन में पड़ती है। ठीक है, सर्जिकल ऑपरेशंस के थ्रू, बर्न्स के पेशेंट्स में ट्रॉमा की वजह से कोई ब्लड लॉस हो या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस हो जैसे कि एनीमियाज हैं जो पेशेंट्स अपने ब्लड खुद ही प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, एप्लास्टिक एनीमिया है, थैलेसीमिया वगैरह है इस केसेस में। ठीक है, प्रेजर्वेशन ऑफ द ब्लड। अब प्रेजर्वेशन कैसे करते हैं? उसकी प्रेजर्वेशन जो होती है वो किस तरह हो रही है? वो हमारे पास बैग्स के अंदर हो रही है जो कि सोडियम सिट्रेट, सिट्रिक एसिड और डेक्सट्रोज रखते हैं। दिस ब्लड कैन बी यूज्ड विद इन 24 days. However, results in a loss of about 30% RBCs, changes in blood during storage. अब जब हम blood store करते हैं उसमें क्या changes आ जाती हैं? Fall in 2,3 by phosphoglyceric acid, fall in the ATP level, decreased activity of sodium potassium pump, fall in the pH, disappearance of platelets and granulocytes, destruction of clotting factor 5 and 8. ये कुछ changes हैं जो हमारे blood के अंदर आ जाएंगी जब हम उसको store करते हैं for longer periods. कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? एक तो इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। ब्लड की जब भी व्हेनेवर इन योर लाइफ जब भी आप लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे किसी को, तो यू विल ऑलवेज गो थ्रू द प्रोसीजर क्रॉस मैचिंग एंड ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड टाइपिंग और क्रॉस मैचिंग। ठीक है, तो क्रॉस मैचिंग जरूरी है ताकि हम चेक कर सकें कि डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड जो है वो कंपैटिबल है कि नहीं। तो इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, द फर्स्ट साइन ऑफ इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द प्रोडक्शन ऑफ चिल्स, pain in the back, tightness in the chest, anxiety and restlessness. A doctor or a nurse should be present in the initial stages of blood transfusion to look for these reactions. If compatible blood gets entry into the patient's circulation, the reaction becomes more severe. The agglutinated RBCs undergo hemolysis, which leads to hemoglobinemia and hemoglobinuria. In severe cases, shock and renal insufficiency make their appearance and the patient may even die. ठीक है, अब जब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा बेसिकली ये भी एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, एंड थ्रू एनी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो कि बहुत ज्यादा एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो, वो प्रोड्यूशन ऑफ चिल्स करेगा, पेन इन द चेस्ट, बैक, टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, एक एंजाइटी सी डेवलप हो जाएगी, रेस्टलेसनेस डेवलप हो जाएगी। ये एक इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर एक स्वेयर रिस्पॉन्स हो रहा है, ये तो एक इनिशियल है, अगर इस पे आप पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन को ब्लॉक कर लें, ठीक है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इफ इट इज नॉट कंट्रोल्ड या रिस्पॉन्स इज वेरी स्वेयर, तो उस केसेस के अंदर क्या होगा? जो एग्लूटिनेटेड आरबीसीज होंगे वो अल्टीमेटली हिमोलिसिस हो जाएगा, उसकी वजह से हीमोग्लोबिनीमिया हो जाएगा, हीमोग्लोबिनीमिया के साथ साथ हीमोग्लोबिनूरिया हो जाएगा। दैट मींस कि आप किडनीज को भी अंडर प्रेशर कर रहे हैं और हीमोग्लोबिनीमिया ब्लड के अंदर भी सर्कुलेट कर रहा है। उसकी वजह से जो है वो उस पेशेंट की शॉक में कंडीशन हो सकती है और रीनल इंसफिशिएंसी की वजह से
ये सारी कंडीशन डेवलप हो सकती है, रीनल इनसफिशिएंसी कॉज हो सकती है एंड द पेशेंट विद सब्सिक्वेंटली मे डाई। एक्यूट किडनी फेलियर आफ्टर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, अब ये एक्यूट किडनी रीनल फेलियर या रीनल इनसफिशिएंसी जो हमने पढ़ा, ये भी एक टाइप है उसी चीज की कि एक्यूट किडनी failure हो सकती है transfusion reaction. One of the most lethal effects of transfusion reaction is kidney failure, which can begin within a few minutes to a few hours and continue until the until the person dies of acute renal failure. The kidney shutdown seems to result from three causes. The antigen antibody reaction of the transfusion reaction releases toxic substances from the hemolyzing blood that causes powerful renal vasoconstriction. ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है बेसिकली कि ये जो एक लीथल हमने पढ़ा कि रेस्पॉन्स है, इसके अंदर वही बात जो हमने पहले पढ़ ली कि हीमोग्लोबिन वगैरह, हीमोग्लोबिनूरिया हो रहा है, हीमोग्लोबिनीमिया हो रहा है। ये जो हीमोग्लोबिनीमिया होगा फिर उसके रिजल्ट में हीमोग्लोबिनूरिया होगा। एक तो हम अपनी किडनीज को ओवरबर्डन करेंगे, इसकी वजह से ये किडनीज ओवरबर्डन हो जाएंगी, डेफिनेटली किडनीज को फिल्टर करना पड़ेगा ना ब्लड को, तो वो ओवरबर्डन हो जाएंगी। उसके बाद उनकी पावरफुल रीनल वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज हो जाएगी। पावरफुल रीनल वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज होने की वजह से क्या हो रहा है कि उनका ब्लड सप्लाई भी कम हो रहा है। एक तो काम ज्यादा करना पड़ रहा है, ऊपर से ब्लड की सप्लाई जो है वो कम हो रही है, तो दिस विल रिजल्ट इन एक्यूट किडनी फेलियर। फिर लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग आरबीसीज इन द रेसिपिएंट, ठीक है, अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द हीमोलाइज्ड सेल्स फ्रॉम द इम्यून रिएक्शन often cause circulatory shock. The arterial blood pressure falls very low and the renal blood flow and urine output decrease. ठीक है, अब होगा क्या कि वही बात है, यूरिन ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो गया और उसके साथ साथ यूरिन आउटपुट वगैरह भी डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर जो मैंने आपको पहले बताया। If the total amount of free hemoglobin released into the circulating blood is greater then the quantity that can bind with haptoglobin, a plasma protein that binds small amount of hemoglobin, much of the excess leaks through the glomerular membranes into the kidney tubules if this amount is slight. अब वही बात मैंने आपको बता दी कि किडनीज को फिल्टर भी करना पड़ रहा है। ये जो उन्होंने बता दिया कि हेप्टोग्लोबिन अगर नहीं है तो वो किडनीज को फिल्टर करना पड़ेगा, तो किडनीज को फिल्टर भी करना पड़ रहा है, किडनीज को जो है वो ब्लड सप्लाई भी कम मिल रही है और डेफिनेटली बार बार उसको टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी आके जो है वो करेंगे, तो दिस सब्सटेंसेस विल कॉल व्हाट, वो सारे का सारा कॉज करें। ये देखें, रीनल वेजोकंस्ट्रिक्शन, सर्कुलेटरी शॉक एंड रीनल ट्यूबुलर ब्लॉकेज बिकॉज ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो ये सारा क्या कर रहा है, एक्यूट रीनल शटडाउन या एक्यूट किडनी फेलियर कॉज कर देंगे। ठीक है, इफ इट इज ग्रेटर द ओनली अ स्मॉल परसेंटेज इज रीअब्सॉर्ब्ड येट वाटर कंटिन्यूज टू बी रीअब्सॉर्ब्ड causing the tubular hemoglobin concentration to rise. So the high hemoglobin precipitates and blocks many of the kidney tubules, thus renal vasoconstriction, circulatory shock, and renal tubular blockage. These three factors together cause acute renal shutdown. If the shutdown is complete and fails to resolve, the patient dies within a week to 12 days unless he or she is treated with an artificial kidney. अगर तो complete obviously kidney failure हो गया तो उसका ultimate solution is artificial kidney या फिर kidney transplant. Non-hemolytic febrile reactions. Now, what are these? These are seen with multiple transfusions of cellular blood components, headache, nausea, vomiting, chills, followed by fever. ठीक है, इसमें कोई hemolysis cause नहीं हो रहा, लेकिन repeated multiple transfusions की वजह से वो क्या होगा कि patient may experience some non-hemolytic febrile. Febrile means illness. Febrile illness means generally जो illness होती है with that comes with fever. ठीक है, तो हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, चिल्स एंड फीवर, एक फेब्राइल रिएक्शन आप फील कर सकते हैं। उसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, अर्टिकेरियल रिएक्शंस। ठीक है, अर्टिकेरिया मेरे ख्याल से आप सबको आइडिया होगा क्या होता है। अर्टिकेरियल रिएक्शंस आर रिलेटेड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स फाउंड इन ट्रांसफ्यूज्ड कंपोनेंट्स एंड रेयरली एनाफाइलैक्सिस, i.e. severe life-threatening allergic reaction that is rapid in onset and may cause death. Symptoms: an itchy rash, throat or tongue swelling, shortness of breath, vomiting, lightheadedness and low blood pressure. ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं ट्रांसफ्यूजन के रिस्पांस में, विच आर अर्टिकेरियल रिएक्शंस, या फिर severe एनाफाइलैक्सिक रिएक्शन हो सकते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। उसके सिम्टम्स क्या होंगे, एक इची रैश हो सकता है जो हमने पढ़ लिया, अर्टिकेरियल रिएक्शन। ठीक है, उसके अलावा थ्रोट या टंग की स्वेलिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वॉमिटिंग, लाइट हेडेडनेस एंड लो ब्लड प्रेशर, ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, फिर hyperkalemia, the stored blood plasma becomes rich in potassium ions due to their leakage from within the RBCs and may cause hyperkalemia if given in large amounts.
उसके साथ वो वही बात है, लार्ज अमाउंट की वजह से क्या हो रहा है, पोटेशियम आयंस जो है लीक हो रही है, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया एज द ब्लड इज केप्ट अनक्लॉटेड बाय एडिंग सिट्रेट। ठीक है, तो सिट्रेट जो है वो कैल्शियम बाइंड करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो टेकअप कर लेगा। ठीक है, मैसिव ट्रांसफ्यूजन जो है वो क्या करेगी, सिट्रेट पॉइजनिंग कर देगी। सिट्रेट पॉइजनिंग से मुराद ये है कि आपकी बॉडी के अंदर सिट्रेट की जो कि हमने उसको यूज किया था स्टोर करने के लिए, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, जो कि कॉज कर देगी हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि वो ब्लड में से कैल्शियम को बाइंड कर लेगी। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, अब आपने सिंपल सी, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, इसमें तो कोई आर्ट नहीं है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर आप किसी नॉर्मल को ट्रांसफ्यूज कर देंगे तो डेफिनेटली अगर उसमें कोई भी पैथोजन होगा तो वो उसके जो है नॉर्मल ब्लड के अंदर चला जाएगा। कॉमन चीजें जो होती हैं वो पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट्स वगैरह हो सकते हैं, ट्रैपोनीमा पैलिडम हो सकता है जो कि कॉज करता है सिफिलिस को, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस वायरस जनरली बहुत कॉमन है ट्रांसफ्यूजन के अंदर, मलेरियल हो सकते हैं, और उसके साथ साथ HIV हो सकता है ट्रांसफ्यूज। ठीक है, फिर हीमोसिडरोसिस, एक्सेसिव आयरन एक्यूमुलेशन। ठीक है, जब आप बार बार ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करते हैं, दैट इज दिस मोस्टली हैपेंस इन द पेशेंट्स विद थैलेसीमिया, जिसके अंदर रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक्सेसिव आयरन एक्यूमुलेशन हो जाती है बॉडी के अंदर फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन की वजह से, जो कि कॉज करती है कॉम्प्लिकेशंस को। ठीक है, सर्कुलेटरी फेलियर, द ब्लड बी ट्रांसफ्यूज एट स्लो रेट अनलेस देयर इज अ रियल नीड for rapid replacement of the massive hemorrhage. The rate should as a rule not exceed 2 ml per kg। ठीक है, 2 ml per kg बॉडी वेट पर आवर के हिसाब से रेट एक्सीड नहीं करना चाहिए। ट्रांसफ्यूजन एट फास्ट रेट्स कैन रिजल्ट इन सर्कुलेटरी फेलियर एंड पल्मोनरी एडिमा व्हिच मे प्रोड्यूस डेथ। ठीक है, particularly if heart lung compliance is poor, the sign and symptoms include dry cough, pericardial chest pain, dyspnea, cyanosis and finally productive cough। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है अगर आप रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें, जो कि नॉर्मली नहीं होती। नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन रेट जो होता है वो 2 ml पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से होगा। ठीक है, पर केजी बॉडी वेट जो है आपका 2 ml पर केजी आसान अल्फाज में, और पर आवर के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, इसके फास्ट रेट्स पे अगर आप करेंगे तो वही बात है कि अगर आपकी जो है सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक नहीं है या हार्ट लंग कंप्लायंस ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्राई कफ डेवलप हो सकती है, प्रिकॉर्डियल चेस्ट पेन हो सकती है, यानी कि अराउंड द हार्ट एरिया। ठीक है, फिर उसके बाद बैक पेन हो सकती है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, डिस्पनिया हो सकती है, साइनोसिस हो सकती है, ब्लूनेस और प्रोडक्टिव काफ, ये सारा कुछ हो सकता है। मिसलेनियस के अंदर एयर बबल्स आ सकते हैं। ठीक है, एयर बबल्स जो हैं, अगर आपने प्रॉपरली ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं किया ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन, उसके अंदर एक एयर बबल आ गया, तो एयर बबल क्या करेगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा थ्रू द वेन फिटिंग ट्यूबिंग। ठीक है, इट मे बी फेटल। हाइपोथर्मिया मे टेक प्लेस इफ कोल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज रैपिड रेट। अब ब्लड को जब भी आप ट्रांसफ्यूज करते हैं बॉडी के ऑलमोस्ट अराउंड बॉडी टेम्परेचर करते हैं ताकि ये हाइपोथर्मिया वगैरह ना हो जाए। ठीक है, अगर ब्लड कोल्ड स्टोरेज में ब्लड आप स्टोर करते हैं, अगर वही कोल्ड ब्लड आप ट्रांसफ्यूज कर देंगे, हाइपोथर्मिया हो सकता है, और अगर एयर बबल भी आप इंट्रोड्यूस करा दे तो वो भी रिस्की हो सकता है। ठीक है, अब ब्लड बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ब्लड के बाय प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास पैक रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, जो कि पेशेंट्स विद एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया या वीक मायोकार्डियम में यूज होते हैं। पैक्ड प्लेटलेट्स होते हैं, अब ये ब्लीडिंग जो जिन पेशेंट्स के अंदर ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स होंगे उसके अंदर हम पैक्ड प्लेटलेट्स को ट्रांसफ्यूज करते हैं। ग्रेन्युलोसाइट ट्रांसफ्यूजन ऐसे केसेस में करते हैं जब सुएर न्यूट्रोपीनिया हमारे पेशेंट्स के अंदर हम देख सकें। फिर प्लाज्मा हो सकता है, प्लाज्मा हम लोग वॉल्यूम एक्सपैंड करने के लिए ब्लड को करते हैं, सुएर ब्लड लॉस हो जाए उस कंडीशन में या बर्न्स की कंडीशन में। ठीक है, फिर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, ये भी सेम चीज है, ये भी हम इसी तरह प्लाज्मा एक्सपेंडर के तौर पे यूज करते हैं। फिर कंसंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल क्लॉटिंग फैक्टर्स हम कर सकते हैं, इसमें कंसंट्रेशन जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ब्लड के अंदर उनको निकाल लिया जाता है, उनकी कंसंट्रेशन बना ली जाती है। ठीक है, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि बेसिकली फैक्टर 8 की उसमें कमी है, तो फैक्टर 8 कंसंट्रेट हम उसको ट्रांसफ्यूज कर देंगे, क्लॉटिंग फैक्टर 8। ठीक है, प्रोटीन फ्रैक्शन फ्रॉम प्लाज्मा, ये प्रोटीन्स भी हम ट्रांसफ्यूज किए जा सकते हैं, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन, हाइपर इम्यून ग्लोबुलिन। अब ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, तो मोस्ट ऑफ द डिफरेंट एंटीजेंस जो होते हैं आरबीसीज के ऊपर दैट कॉज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस आर आल्सो वाइडली प्रेजेंट इन अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। ईच बॉडी टिश्यू हैज ओन एडिशनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंटीजेंस। अब ये जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं इनके भी अपने अपने एंटीजेंस होते हैं, जैसे हमने ब्लड के अंदर पढ़ लिया कि एंटीजेंस होते हैं जो रिएक्शन कॉज करते हैं, इसी तरह सेल्स के अंदर और टिश्यूज के अंदर भी होते हैं, ऑर्गन्स के अंदर भी एंटीजेंस होते हैं। ठीक है,
तो जब फॉरेन ट्रांसप्लांट करेंगे हम बॉडी के अंदर रेसिपिएंट की, तो एक इम्यून रिएक्शन कॉज होगा, ठीक है। अब ये सीरियस अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रिवेंट एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन एसोसिएटेड विद ट्रांसप्लांटेशन, इसको डेफिनेटली रोकने की। अब ट्रांसप्लांटेशन रिएक्शन कौन कौन सा है जी? एक कॉमन रिएक्शन है ट्रांसप्लांटेशन जो है वो क्या है? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग किस चीज को कहते हैं? रेफर करती है एक सर्जिकल प्रोसीजर को टू मूव टिश्यू फ्रॉम वन साइड टू अनदर ऑफ द बॉडी, ठीक है। ग्राफ्टिंग क्या है? आपकी बॉडी के अंदर से ही एक सेल, एक पार्ट को लेके, एक ऑर्गन को लेके, द स्किन इज एन ऑर्गन, ठीक है, स्किन इज एन ऑर्गन। मोस्ट कॉमन जो ग्राफ्टिंग आजकल आप लोगों ने सुना भी होगा, स्किन की ग्राफ्टिंग होती है, ठीक है। और फ्रॉम अनदर पर्सन विदाउट ब्रिंगिंग इट्स ओन ब्लड सप्लाई विद इट, ठीक है। या फिर किसी और पर्सन से हम ग्राफ्ट ले लेते हैं उसकी ब्लड सप्लाई के बगैर। इंस्टेड अ न्यू ब्लड सप्लाई ग्रोज इन इट्स प्लेस आफ्टर, जब वो उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा तो वो खुद अपनी नई ब्लड सप्लाई डेवलप करा लेगा डोनर के रिसिपिएंट के अंदर, ठीक है। सिमिलर टेक्निक वेयर टिश्यू इज रेफर्ड विद ब्लड सप्लाई इंटेक्ट इज कॉल्ड अ फ्लैप, ठीक है। अगर हम टिश्यू को विद ब्लड सप्लाई अगर हम उसको उठा के ट्रांसप्लांट करते हैं तो दैट इज नॉट कॉल्ड अ ग्राफ्ट, दैट इज कॉल्ड अ फ्लैप, ठीक है। In some instances, a graft can be artificially manufactured device. Examples of this are a tube to carry blood flow across a defect or from an artery to a vein in a hemodialysis. ठीक है, तो हीमोडायलिसिस वगैरह के अंदर जो हम चीजें यूज करते हैं, डायलिसिस के अंदर जो वो सीवीपी लाइन वगैरह इस तरह की कोई चीज पास होती है, उसके अंदर हम लोग उसको ग्राफ्ट कह सकते हैं, आर्टिफिशियल ग्राफ्ट, ठीक है। The term grafting is most commonly applied to skin grafting, जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया. However, many tissues can be grafted. For example, skin, bone, nerves, tendons, neurons, blood vessels, fat, cornea. ये टिश्यूज हैं जो कि कॉमनली ग्राफ्ट किए जा सकते हैं आजकल के दौर में. अब ग्राफ्ट्स की टाइप्स होती हैं. अब ग्राफ्ट की टाइप क्या है? ऑटोग्राफ्ट. ऑटोग्राफ्ट क्या है? जो कि आपकी अपनी बॉडी के अंदर से लिया जा रहा है, दैट इज एन ऑटोग्राफ्ट, ठीक है. आइसोग्राफ्ट क्या है? जो कि सेम जेनेटिकल, सेम स्पीशी और सेम जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन वाले बंदे से लिया जा रहा है, दैट इज जो कि आइडेंटिकल ट्विन वगैरह जैसे हम कहते हैं, या कोई ऐसा बंदा जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल है, ठीक है, उसके अंदर हम कहते हैं आइसोग्राफ्ट. फिर एलोग्राफ्ट्स होते हैं. ये एलोग्राफ्ट्स जो हैं ये सेम स्पीशीज के अंदर होते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस टू ह्यूमंस. फिर एंड पे हमारे पास जीनोग्राफ्ट्स आ जाते हैं. नाउ दीज टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट्स आर इंटर स्पीशीज, ठीक है. इसमें क्या होते हैं? ये दीज आर टेकन फ्रॉम अनदर स्पीशीज, ठीक है. फॉर एग्जांपल एनिमल टू मैन. आगे इसकी पिक्चर देखते हैं. ये देखें, ऑटोग्राफ्ट क्या हो रहा है? आपकी अपनी बॉडी से लिया जा रहा है. आइसोग्राफ्ट क्या है? जो कि आइडेंटिकल ट्विन से या जेनेटिकली आइडेंटिकल पर्सन से लिया जा रहा है, आइसोग्राफ्ट. फिर एलोग्राफ्ट आ जाता है जो कि सेम स्पीशीज में है. फिर जीनोग्राफ्ट आ जाता है जो कि किसी डिफरेंट स्पीशीज से लिया जा रहा है. फॉर एग्जांपल इसकी एक कॉमन एग्जांपल ली जा सकती है आपकी कि पिग हार्ट वॉल्व्स जो हैं वो ह्यूमंस के अंदर यूज होते हैं, ठीक है. फिर उसके अलावा इसके अंदर आपने शायद सुना हो या कहीं पे देखा हो, एक फिश है तिलापिया, उसकी स्किन जो है वो भी ग्राफ के तौर पे यूज हो जाती है ह्यूमंस के अंदर. तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ जीनोग्राफ्ट्स, ठीक है. फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स एंड रिजेक्शन. अब ऑटोग्राफ्ट्स एंड आइसोग्राफ्ट्स जो होते हैं वो आइडियल डोनर्स होते हैं डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि वो सेम बंदे से लिए जा रहे हैं या आइडेंटिकल मैच से लिए जा रहे हैं. जीनोग्राफ्ट जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते. दे डेफिनेटली वो इंटर स्पीशीज आ रहे हैं तो कोई ना कोई रिएक्शन, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो वो साथ लाजमी करेंगे. एलोग्राफ्ट्स आर मोर सक्सेसफुल विद द क्लोजर टिश्यू मैच, ठीक है. अब अगर आप देखें इसकी, आप रेशो की बात करें या आप इसकी कह लें कि प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑटोग्राफ्ट और आइसोग्राफ्ट की है, ठीक है. दे वुड वर्क, ठीक है, दे आर आइडियल डोनर्स. जीनोग्राफ्ट्स क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज से आ रहा है तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा. दे वुड कम विद देयर ओन प्रॉब्लम्स. फिर एलोग्राफ्ट्स आ जाते हैं. ये सक्सेसफुल हैं लेकिन if the match is close enough. Transplantation of cellular tissues. In autografts and isografts, cells in the transplant contains the same types of antigens as in the tissues of the recipient and will continue to live normally and indefinitely if an adequate blood supply is provided. All the other extreme immune reactions almost always occur in xenografts, ठीक है. वही बात है दोबारा, causing death of the cell in the graft within 1 to 5 weeks, 1 day to 5 weeks after transplantation. Different cellular tissues and organs that have been transplanted as allografts
either experimentally or for therapeutic purposes from one person to another are skin, kidney, heart, liver, glandular tissue, bone marrow, and lungs. With proper matching of the tissues between persons, many kidneys allografts have been successful for at least 5 to 15 years. Now, this is a really real success. Tissue typing, the human leukocyte antigen complex. ठीक है, अब ये क्या है? जब हम टिश्यूज की बात करते हैं, जब हमने ब्लड के अंदर पढ़ा कि एंटी डी एंटीबॉडी है या एंटी डी एंटीजन है, ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, जब हम सेल्स की बात करें, ये ग्राफ्ट की रिजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो एंटीजन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. ठीक है, ये 6 एंटीजन प्रेजेंट होते हैं टिश्यू सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम कॉजिंग है या जो सबसे ज्यादा कंसिडरेबल है वो दैट इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. ठीक है, अब ये डेवलप करता है सिग्निफिकेंट इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीजेंस कैन कॉज ग्राफ्ट रिजेक्शन. अगर इनके खिलाफ होस्ट जो है वो एंटीबॉडीज डेवलप करना शुरू कर दे तो डेफिनेटली क्या होगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन कॉज हो जाएगी. ठीक है, HLA एंटीजन अकर्स ऑन व्हाइट ब्लड सेल्स एज वेल एज ऑन टिश्यू सेल्स. देयरफॉर टिश्यू टाइपिंग of these antigen is done on the membranes of the lymphocytes. अब ये बता रहे हैं कि जो हम टिश्यू टाइपिंग या टिश्यू की जो मैचिंग करते हैं that is from the cell membranes of the lymphocytes. ठीक है, अब प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? हमने देख लिया कि ये एक इम्यून रिस्पॉन्स है. ठीक है, कि एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होता है, उसके खिलाफ हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेती है. ठीक है, तो ये बेसिकली if the immune system were completely suppressed, graft rejection would not occur. In fact, in a person who has serious depression of immune system, grafts would be successful. तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एक नॉर्मल पर्सन है उसको हम ग्राफ्ट